اگر بات کی جائے حقوق کی تو ہمارے معاشرے میں رہتے ہوئے تمام افراد کو وہ حقوق حاصل ہیں جن کے وہ حقدار ہیں، مگر اس ملک میں ایک تیسرا طبقہ بھی موجود ہے جسے ہم تیسری جنس کہتے ہیں۔ ہمارے معاشرے نے نہ صرف انہیں نظر انداز کر دیا ہے بلکہ ان کو ناقابل قبول قرار دیا ہے۔ غلط نگاہ سے دیکھتے تھے، ٹارچر کرتے تھے، ایشو بناتے تھے، آوازیں کسنا، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ ان کو مطلب اشارے کرنا۔ ہم اس بات کو بھول چکے ہیں کہ وہ ہمارے معاشرے کی ایک اہم اکائی ہے۔ کسی معاشرے کے بندے نے یہ نہیں کہا میری کمیونٹی کو، یعنی کہ بازو پکڑ کے کہتا آپ کی تعلیم کتنی ہے، آپ کس مجبوری پہ آپ بھیک مانگ رہے ہیں، کیوں مانگ رہے ہیں۔ جب کوئی خواجہ سرا پیدا ہوتا ہے تو اسے گھر سے نکال دیا جاتا ہے۔ ماما پاپا کی ڈیتھ کی وجہ سے پھر بھائیوں نے مجھے نکال دیا، تو اسے اس کی شناخت کے حصول میں بھی بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ میں نے بہت کوشش کی، ہر جگہ سی وی لے کر گئی، اچھے اداروں میں، ہر جگہ بہت سارے لوگوں کو میں نے اپیل کی، بات کی، لیکن میرا کچھ نہیں بن سکا۔ اگر بات کی جائے 2018 کے آئین کی تو ان کو بھی وہ تمام حقوق حاصل ہیں جو کہ ایک عام انسان کو حاصل ہے، یہ بھی اپنی ایک مکمل شناخت کا حق رکھتے ہیں۔ ٹرانسجینڈر ایکٹ 2018 میں ٹرانسجینڈر جو کمیونٹی ہے اس کے سرٹن رائٹس، جس طرح پاکستان کے آرٹیکل 25 کے تحت، آئین پاکستان کے تحت دیگر شہریوں کو جو حاصل حقوق ہیں، جن میں اپنی شناخت کا حق میجر ہے اور اس سے متعلق دوسرے جو رائٹس ہیں، ان کے اوپر جو ہے وہ ایمفسس کیا گیا اور قانون بنایا گیا 2018 میں، جس میں ان کی جو شناخت ہے ایز اے ٹرانسجینڈر ایکسیپٹ کی گئی پاکستان میں پہلی دفعہ۔ اور اگر تعلیم کی بات کی جائے اس ملک میں تو وہ تو اس کے لیے کہیں سے موجود ہی نہیں، اور اگر کہیں سے بھی ایسا بچہ کسی اسکول میں داخل بھی ہو جائے تو ہمارے معاشرے کے لوگ اس کے لیے تعلیم کے حصول میں رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں۔ تعلیمی حصول کے دوران بھی بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، بیکاز تھوڑی سی گیٹ اپ اس طرح کا ہوتا تھا، اور اس کے علاوہ میرا جو تھا بولنا، چالنا، چلنا پھرنا تھوڑا سا ڈفرینٹ تھا، تو پھر ہر بندہ ہوٹنگ کرنا۔ سپا گل وہ پہلی خواجہ سرا ہے جو کہ ایک خواجہ سرا اسکول چلا رہی ہیں، جہاں پر خواجہ سراؤں کو تعلیم دی جاتی ہے۔ نہ صرف تعلیم بلکہ ہر مہینے ان کو ایک وظیفہ فراہم کیا جاتا ہے تاکہ خواجہ سرا بھیک مانگنا چھوڑ کر ایک با اختیار اور باوقار زندگی گزار سکے۔ تو میری کمیونٹی بہت زیادہ جو تھی وہ سادہ طبیعت ان پڑھ لوگ تھے، ان سے یعنی کہ کلچر نے یعنی کہ نہیں سکھایا گیا جسم بیچو یا بھیک مانگو یا ڈانس کرو۔ وہ 10 روپے جو رکھتے ہیں وہ ہمیں گرا ہوا انسان سمجھ کے وہ 10 روپے دیتے ہیں، وہ اس لیے 10 روپے دیتے ہیں یعنی کہ ان کو اللہ کے نام پہ دے دو، یعنی کہ ان کا کام ہی ہے یہ بھیک مانگنا، حالانکہ وہ ایک انسانیت کو نہیں سپورٹ کر رہے ہوتے۔ اور اس کے ساتھ یعنی کہ جب 8 مہینے پہلے ایکٹ جو ادارہ ہے انہوں نے رابطہ کیا میرے ساتھ، میں نے ایگریمنٹ ان کے ساتھ کیا، پھر اس کے ساتھ یعنی کہ یہ جو سکول جہاں ہم بیٹھے ہیں یہ آرمی والوں کے ساتھ تھا، میں ان کے پاس گئی، میں نے ترلے کیے، اسی طرح ایجوکیشن جو ڈپارٹمنٹ ہے ان کے پاس گئی، ان کے ترلے کیے، یعنی کہ یہ کرنا چاہیے۔ میری بات کو یعنی کہ الحمدللہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے انہوں نے بھی فالو کیا اور آرمی نے بھی فالو کیا اور ایکٹ والوں نے بھی فالو کیا، یعنی کہ سبھا جو کہہ رہی ہے وہ تو صحیح کہہ رہی ہے، کیونکہ جو ابتدا میں ہمیں کرنا چاہیے تھا، آپ بڑھاپے میں آ کر ہم کو وہ چیزیں ریسیو کرنی پڑی، وہ چیزیں ملنے لگی، یہ ہمیں بچپن سے یہ چیزیں ملنی چاہیے تھی۔ اگر میری کمیونٹی کو یہ معاشرہ، وہ ماں، وہ باپ، وہ بہن، وہ بھائی، یہ تمام عہدیداران ہماری گورنمنٹ اس چیز کو دیکھتی، ان کا بھی حق ہے، ان کا رائٹ ہے۔ جب سے سن 2018 کا ایکٹ پاس ہوا، اس ایکٹ کے بعد ہمیں پتہ چلا یعنی کہ ہمارے کوئی رائٹ ہے، ہمارے کوئی حقوق ہیں۔ اس سارے لاء میں جو ان کی بنیادی ضروریات ہیں ان کو کیٹر کیا گیا، جس میں تعلیم جو ہے، روزگار ہے، زندگی کا حق ہے، شناخت کا حق ہے، جس میں اور بار میں کہہ رہا ہوں، تو یہ ساری چیزوں کو کیٹر کیا گیا۔ سو یہ سارا جو ٹرانسجینڈر جو ایکٹ تھا یہ اس سے متعلق تھا۔
यहाँ पर मैं तो सबा गुल के रेफरेंस से आई हूँ और माशाल्लाह सबा गुल के इसके अलावा और भी माशाल्लाह बड़े अच्छे काम किए हुए हैं, क्या कुरान स्कूल हो, इसके अलावा मतलब एक शीमेल जो हजरात है जो मतलब नहीं जो रोड पे आते हैं, घूमते हैं, मांगते हैं, लोगों के घरों में जाते हैं, उनको एक मतलब एक अच्छा इंसान बनाना, एक अच्छा माशरे में एक अच्छा शहरी बना के लाना, उनको वहाँ से उस चीज़ पे छुड़वाना चाहिए। जो गलत काम करते हैं, ठीक है, डांस फंक्शन वगैरह, इन चीज़ों से उनको हटाना चाहिए। सबसे पहले उनको एक अच्छा शहरी मतलब उनको तालीम देनी चाहिए। सबसे पहले तालीम मस्ट है उनको तालीम देनी चाहिए, उनको एक इज़्ज़त देनी चाहिए उनको, ठीक है, उनको ना कि बल्कि आप अगर उनको आवाज़ें देंगे, ठीक है, आवाज़ें कसेंगे, उनके लिए मजाक बनाएंगे तो ज़ाहिर है फिर वो भी आपको पता है फिर वो मतलब उन पर क्या गुजरेगा। और इस सबा गुल के लिए कहती हूँ कि अल्लाह ताला ने खुश रखे, ठीक है, अल्लाह ने ज़िंदगी जिस तरह वो काम कर रही हैं और जिस तरह वो बाहर मतलब एक निकली, एक माशरे में निकली, उन्होंने लोगों को बताया हुआ है कि ये भी एक कौम है। अच्छा सलोनी, आप स्कूल में कब से हो? मुझे होगी 2 हफ्ते हो गए इस स्कूल में। तो किसने बताया था आपको स्कूल के बारे में? मुझे मेरी खाला फौजिया ने बताया था, तो मैं उनके कहने पे यहाँ आई हूँ। आपके पड़ोस में रहती हैं? जी नहीं, वो ये खाला फौजिया में वो ये साथ ही रहती है। इसलिए मैं माशरे के लोगों के बारे में तो ये कहना चाहूँगी कि लोग जो हैं वो अपने माइंड का सोचते हैं, हमारे माइंड से कभी नहीं सोचे कि हम में भी एक जान है, हम भी एक इंसान हैं, हमारे भी काफ़ी हकूक़ हैं, हम भी इस दुनिया में हैं, हमारे बारे में भी सोचना चाहिए। मुझे मंथ तो हो गया, 1 मंथ हो गया यहाँ पे आते। और उससे पहले आप क्या काम करते हैं? बेगिंग बेकिंग का। तो किसने आपको इस इदारे के बारे में बताया? सब मैडम हमारी बड़ी है। तो आपको क्या लगता है कि बेकिंग करनी चाहिए या नहीं, और आप अपनी मर्जी से करते हो या फिर आप मजबूर होकर करते हो? नहीं, हम मजबूर होके करते हैं, शौकिया कौन करते हैं, आपको पता ही है। नताशा, आप स्कूल में टीचर हो? जी मैं टीचर हूँ। तो आप टीचिंग की फील्ड में कैसे आई और आपको ट्रांसजेंडर्स के लिए ही क्यों आई? एक्चुअली मैंने काफ़ी एजुकेशन हासिल की डिफरेंट जगह से और काफ़ी अच्छा पढ़ा, और मुझे शुरू से बहुत अच्छे मेरे पास स्किल्स भी थे, मेरे पास ब्यूटिशियंस की स्किल्स थे, मेरे पास मेडिकल की स्किल्स थे, और मैंने बहुत जगह कोशिश की कि मैं अच्छी जॉब करूं, क्योंकि ठीक है आई एम ट्रांसजेंडर, बट मेरा ना इस तरह का फील्ड में मुझे आने का शौक़ नहीं था कि मैं डांस करूं और मैं बेकिंग करूं। तो मुझे शुरू से ना पढ़ने लिखने का बहुत शौक़ था, तो मैंने फिर स्टडी की। स्टडी करने के बाद मैंने बहुत कोशिश की, हर जगह CV लेकर गई, अच्छे इदारों में, हर जगह बहुत सारे लोगों को मैंने अपील की, बात की, लेकिन मेरा कुछ नहीं बन सका। तो ये फिर यहाँ पे इदारा ओपन हुआ, मुझे पता लगा कि कोई इदारा ओपन हुआ है जहाँ बच्चों को, ट्रांसजेंडर को ख़ास तौर पे स्टडी करवा रहे हैं, और उनको टीचर भी ट्रांस ही चाहिए थी। तो फिर मैंने यहाँ पे अप्लाई किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह से मुझे मेरी उन्होंने सुन ली और मैं यहाँ पे बच्चों को पढ़ाती हूँ। ट्रांसजेंडर्स को जिस तरह से ट्रीट किया जाता है, अनफॉर्चुनेटली मिसट्रीट किया जाता है, उसको रोकने के लिए उनके ऊपर जो मुस्लिम किस्म के उनके जो तासुबात हैं उनकी में कमी के लिए, जिसमें ज़ाहिर रोज़गार का हक़ है, ज़िंदगी का हक़ है, शनाख्त का हक़ है, ये दूसरे तमाम हकूक़ जो पाकिस्तान में तमाम दूसरे शहरियों को हासिल हैं, उनके बराबर लाने के लिए एक सही थी, जिसमें ये भी था कि उनकी नौकरियां जो हैं वो भी इंश्योर किए जाएं और उनको एक काबिल इज़्ज़त रोज़गार भी दिया जाए। क्या मेरी फैमिली एक एजुकेटेड फैमिली थी, उन्होंने मुझे एक अच्छी तालीम दी, अच्छे स्कूल में पढ़ाया, अच्छे कॉलेजेस में पढ़ाया, फिर अच्छी यूनिवर्सिटी में मुझे पढ़ाया। उसके बाद फिर मैंने एक इंटर्नशिप स्टार्ट की एक न्यूज़ चैनल में, फिर वहाँ पर मैंने जॉब स्टार्ट कर दी। इसके अलावा मैं एक मेकअप आर्टिस्ट भी हूँ और माशाल्लाह मैं एक अपना पार्लर भी चला रही हूँ, और इसके साथ साथ मैं यहाँ पर स्कूल में आती हूँ और स्कूल में बच्चों को एक लेक्चर भी हैजा देती हूँ, और जो कुछ मुझसे होता है, जो मैंने सीखा हुआ है, वो बच्चों को यहाँ पे आकर सिखाती हूँ। इदारे तो एक्टिव हैं, हर इदारा यानी कि इस पे काम करना चाहता है, हर इदारा उसको पता है ट्रांस में किसी ने काम नहीं किया, एक नया इशू है, एक नया काम, और उसमें जितने हमारी पाकिस्तान की बहनें, बेटियाँ, माएँ जो काम कर रही हैं, जो हमारे भाई कर रहे हैं, जो सरकारी लोग कर रहे हैं, अब इनको ये इल्म नहीं है यानी कि हमारे लिए यानी कि पूरा पाकिस्तान एक्टिव हो चुका है। अगर ये लोगों का साथ हमारी कमेटी देना शुरू कर दे और तवज्जो देना शुरू कर दे, हमारी कमेटी जो है उम्मीद है अल्लाह के साथ है ये नंबर 1 पे आ सकती है। जहाँ सबा गुल जैसी ख्वाजा सराओं की तालीम के लिए काम कर रही हैं, वहीं पर रानी खान जो कि ख़ुद एक ख्वाजा सरा कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखती हैं, उन्होंने ख्वाजा सराओं की दीनी तालीम के लिए पहला मदरसा तामीर किया है, जो कि दुनिया का पहला ख्वाजा सरा मदरसा कहलाता है। ये पाकिस्तान का नहीं, ये पूरी दुनिया का फर्स्ट ट्रांसजेंडर मदरसा है, और बहुत सारे लोगों ने अप्रिशिएट किया हमें माशाल्लाह से। हमारे वो ख्वाजा सरा जिन्हें कलमा ही नहीं आता था, आज माशाल्लाह वो बाजमात नमाज अदा कर रहे हैं, आज वो 6 कलमे ज़बानी पढ़ रहे हैं, आज वो कुरान मजीद नाज़रा कर चुके हैं। हैज़ा मुस्लिम होने की हैसियत से हमें
ये बहुत ही पहले इकदाम उठा लेना चाहिए था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस इकदाम से पूरे शहर में जो है वो काफ़ी तबादला हुआ है। मतलब काफ़ी ख्वाजा सर जो वो चेंज हुए हैं हमारे मदरसे को देखकर। हमारे एक इनिशिएटिव हो रहा था, जो इनिशिएटिव मैंने लिया, दूसरे दीगर शहरों में भी माशाल्लाह से मदरसे कायम हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, जब हमने स्टार्ट किया था तो फिर मैंने ये भी सोचा था कि इनकी अर्निंग भी होनी चाहिए। ये बैकिंग नहीं करते, ये वेडिंग डांसिंग नहीं करते, ये अपना काम करते। एक हमारे स्टॉल है पूरे इस्लामाबाद में, और दूसरा हमने सिलाई सेंटर बनाए हुए हैं। माशाल्लाह से वहाँ पे अपना रोज़गार जो है वो कमा रहे हैं। रानी खान न सिर्फ यहाँ ख्वाजा सिराओं को दीनी तालीम देती है, बल्कि उन्हें दीन से मुकम्मल आगाह भी करती हैं, और इसके साथ साथ ख्वाजा सिराओं की सेहत के लिए वो HIV एड्स का एक हस्पताल भी तामीर करवा रही हैं। ख्वाजा सिराओं को माशरे के साथ शाना बशाना चलने के लिए एक अहम किरदार अदा कर रही हैं। मैं बरसों से जा रही हूँ पिम्स हॉस्पिटल में, पॉली क्लिनिक में, दीगर जितने भी हॉस्पिटल है सरकारी, उनमें जा रही हूँ मैं, लेकिन मैंने उस तरह का बिहेवियर जो आम लोगों के साथ होता है ख्वाजा सरों का बड़ा चेंज देखा है। यहाँ तक कि अभी लास्ट टाइम मैं गई थी पेशेंट्स को लेकर, इंजेक्शन भी उन्होंने दूर से ऐसे लगाया, इंजेक्शन करीब उनको नहीं किया, पेन किलर उनको नहीं दी। तो अगर एक डॉक्टर्स का ये रवैया है तो फिर वो जो बीमार है ऑलरेडी पहले ही, उसका क्या होगा। यहाँ तक कि हमारे ख्वाजा सरा मौत को तरजीह देते, कहते मैं हॉस्पिटल ना लेकर जाए। तो ये एक दर्दनाक बात है। इसलिए मैंने इनिशिएटिव लिया कि ये हमारा हॉस्पिटल होगा, यहाँ कोई होटिंग नहीं होगी आप पर। हमें इनको अपने शाना बशाना लेकर चलना चाहिए ताकि ये तबका एक बावकार जिंदगी गुजार सके। हमें जिनसी तफर्रुक को छोड़कर मुकम्मल तौर पर इस तबके को माशरे का अहम रुकन बनाने में मस्बत किरदार अदा करना चाहिए।